भारत धर्म की पवित्र भूमि है। हर युग में भारत में महान गुरु और रहस्यवादी, दृष्टा और साधक हुए हैं, जिन्होंने मानवता को अंदर शांति और बाहर सद्भाव खोजने का मार्ग दिखाया है। दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भगवान बुद्ध का इन पथ प्रदर्शकों में अद्वितीय स्थान है। The International Buddhist Confederation, or IBC in short, must be commended for organizing this two-way conference. The themes chosen for the summit, the role of Buddha Dhamma in strengthening Asia, is age after age, it is timely. Over these 2 days, you monks, scholars, and practitioners will engage in dialogues and discussions about the Buddha Dhamma and its role in contemporary society. India is the blessed land of Dharma. Here, in every age, there have been great masters and mystics, seers and seekers who have shown humankind a way to find peace inside and harmony outside. The Buddha holds a unique place among these pathfinders. The enlightenment of Siddhartha Gautama under the Bodhi tree in Buddha Gaya is an event unparalleled in history. राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने न केवल मानव मन के कामकाज के बारे में अतुलनीय समृद्ध अंतर्दृष्टि प्राप्त की, बल्कि उन्होंने बहुजन सखाय बहुजन हिताय की भावना से सभी लोगों के साथ इसे साझा किया। He not only attended incomparably rich insights into the working of the human mind, he also chose to share them with all people in the spirit of Bahujana Sukhayo, Bahujana Hitayo Cho, for the welfare of the masses. For 45 years after his enlightenment, he went from place to place preaching the Dharma. He took his message to a variety of audiences, kings and artisans, men and women, monks and lay people. To spiritually involved people, he explained the causes and conditions that shape human experience. To ordinary people, he taught how to lead a moral life. राष्ट्रपति ने कहा, बुद्ध की शिक्षाओं का संरक्षण हम सभी के लिए महान सामूहिक प्रयास रहा है। उन्होंने कहा कि बौद्ध संघ के बारे में सच है कि इसका केंद्र हर जगह है और परिधि कहीं नहीं है। The spread of Dhamma over all expanding geographical area created a community, a larger Sangha. In essence, India, the land of the Buddha's enlightenment, is at its center. But what is said about God is also true about this larger Buddhist Sangha, that its center is in everywhere and circumference nowhere. This is all the more true because apart from Southern Buddhism and Northern Buddhism, it has also been spreading in the only remaining direction in the last 2 centuries, and it has come to known as Western Buddhism. राष्ट्रपति ने कहा कि आज जब दुनिया कई मोर्चों पर अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है, न केवल संघर्ष बल्कि जलवायु संकट भी है, ऐसे में बौद्ध समुदाय के पास मानव जाति को देने के लिए बहुत कुछ है। When the world today is facing an existential crisis on many fronts, not only strife but also the climate crisis, your large community has much to offer
to humankind. The various schools of Buddhism show the world how to counter narrow sectarianism. Their central message remains focused on peace and non-violence. If one word can capture the Buddha Dhamma, it has to be Karuna or passion, which is what the world needs today. As the theme of the summit has captured it well, we need to discuss the role of Buddha Dhamma in strengthening Asia. Indeed, we need to expand the discussion to see how Buddha Dharma can bring peace, real peace, to Asia and to the world, a peace free from not only physical violence, but also from all forms of greed and hatred. The two mental forces at the root of all our miseries, according to the Buddha. दिल्ली में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का विषय है एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से बौद्ध धर्म को सम्मानित करते हुए 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। विविध संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं के एक जीवंत केंद्र के रूप में प्रसिद्ध भारत लंबे समय से बौद्ध धर्म का गढ़ रहा है। यह प्राचीन परंपरा न केवल इसकी सीमाओं के भीतर विकसित हुई, बल्कि विभिन्न देशों में भी फैली। इस समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने के लिए केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। एशिया को मजबूत करने में बुद्ध धम्म की भूमिका विषय पर आयोजित इस शिखर सम्मेलन में पूरे महाद्वीप के बौद्ध संघों के सम्मानित नेतागण, बौद्ध धर्म के विद्वान और मतावलंबी शामिल हुए, जिसने बौद्ध समुदाय के सामने आने वाली समकालीन चुनौतियों का समाधान करते हुए संवाद और समझ को बढ़ावा दिया। बुद्ध धम्म की यात्रा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुई, जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और अपनी गहन अंतर्दृष्टि को समझना शुरू किया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं को उनके अनुयायियों द्वारा संरक्षित और प्रसारित किया गया, जिससे 3 प्रमुख बौद्ध परंपराओं का उदय हुआ: थेरवाद, महायान और वज्रयान। 268 से 232 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह दिखाया कि कैसे इसकी शिक्षाएं शांति, खुशी और सद्भाव को बढ़ावा देकर समाज को बदल सकती हैं। उनका शासन धम्म के सिद्धांतों पर आधारित था। उनके शिलालेख और स्तंभ लेख एशिया भर में बौद्ध धर्म के व्यापक प्रसार के स्थायी प्रतीक के रूप में मौजूद हैं। जैसे जैसे बौद्ध धर्म विकसित हुआ, विभिन्न मठ आधारित संप्रदाय उभरे। इसके परिणाम स्वरूप पहली शताब्दी ईस्वी तक एक महत्वपूर्ण विभाजन हुआ, जिसके कारण महायान और निकाय बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जिसमें थेरवाद एकमात्र जीवित निकाय है। बौद्ध धर्म का प्रसार भारत के बाहर भी बढ़ा। स्थानीय संस्कृतियों को अपनाते हुए यह मध्य एशिया से होते हुए उत्तर के पूर्वी एशिया तक फैला और उत्तरी शाखा का निर्माण हुआ। यह पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला और दक्षिणी शाखा का निर्माण हुआ। बौद्ध शिक्षाओं की अनुकूलनशीलता और विविध व्याख्याओं के उद्भव ने इस धर्म को संपूर्ण इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों की आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ बनाया है। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 बुद्ध धम्म भारत
और एशिया के पूरक संबंधों को प्रदर्शित करते हुए उनके बीच के गहन अंतर संबंधों पर जोर देता है। यह शिखर सम्मेलन एशिया में सामूहिक, समावेशी और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत की एक्ट ईस्ट नीति और पड़ोसी पहले यानी नेबरहुड फर्स्ट की नीति के अनुरूप है। बौद्ध कला, वास्तुकला और विरासत का अत्यधिक महत्व है, जो इस परंपरा के भीतर के गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को दर्शाते हैं। लाखों लोगों द्वारा अपनाई गई बुद्ध की शिक्षाएं भारत की विरासत की समृद्ध पटल पर खूबसूरती से सन्निहित हैं, जिसमें सांची के स्तूप और अजंता की गुफाएं जैसे स्थल गहन शिक्षाओं को व्यक्त करते हुए उत्कृष्ट शिल्प कौशल का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बौद्ध कला और वास्तुकला को संरक्षित करके हम विविध समुदायों के बीच अंतर सांस्कृतिक समझ और सराहना में वृद्धि कर सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान और कल्याण में बुद्ध धर्म का महत्व जागरूकता, करुणा और सभी प्राणियों के परस्पर जुड़ाव पर जोर देने में निहित है। इन प्राचीन शिक्षाओं को समकालीन विज्ञान के साथ एकीकृत करके शोधकर्ता कल्याण के ऐसे समग्र दृष्टिकोण की खोज कर रहे हैं जो मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। बौद्ध साहित्य और दर्शन एक ऐसा समृद्ध और जटिल परिदृश्य तैयार करते हैं जो मानवीय स्थिति, वास्तविकता के स्वरूप और आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रकाश डालता है। इन ग्रंथों में व्यक्त बुद्ध के ज्ञान ने सदियों से मन को मोहित किया है। इन लेखों के माध्यम से बौद्ध धर्म का दर्शन अंतर्दृष्टि तथा समझ हासिल करने का एक कालातीत स्रोत बना हुआ है। इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के अलावा इस शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजन स्थल पर अन्य रचनात्मक प्रदर्शनों के साथ साथ एशिया को जोड़ने वाले धम्म सेतु के रूप में भारत शीर्षक से एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। यह आयोजन बुद्ध के धम्म से संबंधित संपूर्ण एशिया के विविध दृष्टिकोणों को एकजुट करने का एक अनूठा अवसर है। बुद्ध की शिक्षाओं और उनके शिष्यों और अनुयायियों द्वारा प्रचारित ज्ञान ने जीवन, देवत्व और सामाजिक मूल्यों पर एक साझा दृष्टिकोण विकसित करके पूरे एशिया में एकता को बढ़ावा दिया है। बुद्ध धम्म भारत की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो देश की ठोस विदेश नीति और प्रभावी राजनयिक संबंधों में योगदान दे रहा है। यह साझा विरासत आधुनिक युग में विभिन्न राष्ट्रों के बीच आपसी समझ, सम्मान और सहयोग को बढ़ाती है। इसी के अनुरूप भारत ने इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसे संरक्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न पहल की हैं। बौद्ध सर्किट पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन की थीम आधारित विभिन्न पर्यटक सर्किटों की एकीकृत विकास योजना के तहत विकास के लिए पहचाने गए 15 विषयगत सर्किटों में से एक है। बौद्ध सर्किट में कपिल वस्तु सहित बौद्ध धर्म से संबंधित देश के सभी स्थल शामिल हैं। 20 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया 2 दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 सार्वभौमिक मूल्यों के प्रसार और आंतरिककरण के तरीकों की खोज पर केंद्रित था। इस शिखर सम्मेलन में प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर गौर किया गया और भविष्य के लिए टिकाऊ मॉडल प्रस्तुत किए गए। प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से व्यक्तिगत और वैश्विक स्तर पर शांति और सद्भाव की तत्काल आवश्यकता को पहचाना। 4 अक्टूबर 2024 को पाली को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। यह एक ऐसी मान्यता है जो इस क्षेत्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में इसके ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करती है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश देने के लिए पाली का उपयोग किया और इसे अपनी शिक्षाओं को व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्थापित किया। यह दर्जा बौद्ध धर्म की समृद्ध परंपराओं और बुद्ध धम्म की शिक्षाओं को संरक्षित करने में पाली के महत्व की पुष्टि करता है।
17 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के राजदूतों, भिक्षुओं और विद्वानों सहित लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए अभिधम्म की शिक्षाओं की स्थायी प्रासंगिकता पर जोर दिया और बुद्ध धम्म के संरक्षण में पाली की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इन गतिविधियों की निरंतरता में ABS पूरे एशिया में बुद्ध धम्म से संबंधित विविध विचारों को एक साथ लाने का एक अनूठा अवसर है। बुद्ध में आस्था केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा का मार्ग है। दुनिया के देश जो भी बुद्ध को जानने और मानने वाले लोग हैं, उन्हें हम इस मिशन में एक साथ ला रहे हैं। मुझे खुशी है दुनिया के कई देशों में इस दिशा में सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड समेत कई देशों में पाली भाषा में टीकाएं संकलित की जा रही है। भारत में भी हम ऐसे प्रयासों को तेज कर रहे हैं। पारंपरिक तरीकों के साथ साथ हम पाली को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल आर्काइव्स और ऐप्स के जरिए भी प्रमोट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार ने करुणा, जागरूकता और परस्पर जुड़ाव के मूल्यों को बढ़ावा देते हुए पूरे एशिया और उसके बाहर विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को गहराई से आकार दिया है। बौद्ध धर्म के जन्म स्थान के रूप में भारत इस समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने और उसे बढ़ावा देने वाली नीतियों के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके भारत न केवल बुद्ध धम्म के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहा है, बल्कि समकालीन समाज में बौद्ध धर्म के विकास और प्रासंगिकता को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में खुद को एक अगुवा के रूप में स्थापित कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहें। पाली भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषाओं में एक है, जिसे भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। पाली भाषा दीर्घकाल तक राज्य भाषा के रूप में भी गौरवान्वित रही है। पाली को आमतौर पर एक प्राचीन भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रारंभिक युग से कोई भी अभिलेखीय या पांडुलिपि साक्ष्य नहीं बचा है। खोजे गए पाली के सबसे पुराने नमूने 5वीं से 8वीं शताब्दी के शिलालेख हैं, जो मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से मध्य सियाम और निचले बर्मा में स्थित है। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही उपदेश दिए हैं। अशोक के समय में इसकी बहुत उन्नति हुई। उस समय इसका प्रचार भी विभिन्न बाह्य देशों में हुआ। अशोक के समय सभी लेख पाली भाषा में ही लिखे गए थे। यह कई देशों जैसे श्रीलंका, बर्मा आदि देशों की धर्म भाषा के रूप में सम्मानित हुई। इसका प्रमाण सम्राट अशोक के शिलालेखों और स्तंभों से प्राप्त होता है। बुद्ध काल में पाली भाषा भारत के जनमानस की भाषा थी। तथागत बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में ही दिए हैं। पाली भाषा का उद्भव गौतम बुद्ध से लगभग 300 वर्ष पहले ही हो चुका था, किंतु उसके प्रारंभिक साहित्य का पता ही नहीं लगता।
प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य प्रारंभिक अवस्था में कथा, गीत, पहेली आदि के रूप में रहता है और उसकी रूपरेखा तब तक लोगों को ज़बानी याद रहती है जब तक कि वह लेखबद्ध या ग्रंथारूढ़ न हो जाए। इस काल में पाली भाषा की जैसे उत्पत्ति हुई वैसे ही विकास भी हुआ। प्रारंभ से लेकर लगभग 300 वर्ष तक पाली भाषा जनसाधारण के बोलचाल की भाषा रही, किंतु जिस समय भगवान बुद्ध ने इसे अपने उपदेश के लिए चुना और इसी भाषा में उपदेश देना शुरू किया, तब यह थोड़े ही दिनों में शिक्षित समुदाय की भाषा होने के साथ साथ राजभाषा भी बन गई। पाली शब्द का सबसे पहला व्यापक प्रयोग हमें आचार्य बुद्ध घोष की अट्ट कथाओं और उनके विशुद्धि मग्ग में मिलता है। वहाँ यह बात अपने उत्तरकालीन भाषा संबंधी अर्थ से मुक्त है। आचार्य बुद्ध घोष ने 2 अर्थों में इसका प्रयोग किया है। पाली भाषा की जड़ें प्राचीन भारत में बौद्ध और जैन परंपराओं से जुड़ी हैं। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए, जिससे यह भाषा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का अहम माध्यम बन गई। बौद्ध ग्रंथों, विशेषकर त्रिपिटक को पाली भाषा में संरक्षित किया गया, जो बुद्ध के उपदेशों और धार्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। पाली का सबसे पहला उल्लेख बुद्ध घोष की टीकाओं में मिलता है, जबकि इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ इसे मगधी भाषा से जुड़ा मानते हैं, जबकि अन्य इसे आम जन की भाषा बताते हैं। पाली का अध्ययन प्राचीन भारत के इतिहास, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के साथ पाली का प्रचार भारत से बाहर भी हुआ और आज यह भाषा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान, तिब्बत और अन्य बौद्ध बहुल देशों में व्यापक रूप से पढ़ाई जाती है। पाली भाषा की महत्ता उसके समृद्ध साहित्यिक योगदान और प्राचीन भारतीय ज्ञान को संरक्षित करने में निहित है। पाली भाषा में रचित साहित्य बौद्ध धर्म की धार्मिक धरोहर को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक है, जो 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड विनय पिटक भिक्षुओं के लिए धार्मिक नियमों और नैतिक आचरण को तय करता है। दूसरा खंड सुत्त पिटक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, जबकि तीसरा खंड अभिधम्म पिटक मन और ज्ञान के गहन विश्लेषण से संबंधित है। पाली साहित्य में जातक कथाएं भी शामिल हैं, जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को प्रस्तुत करती है। ये कहानियाँ भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं और उनमें नैतिकता, धर्म और समाज के मूलभूत सिद्धांतों को वर्णित किया गया है। पाली भाषा के माध्यम से बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जन जन तक पहुंची और इससे जुड़ा साहित्य भारत के प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक विचारों को आज भी संजोए हुए है। पाली भाषा संपूर्ण मध्य देश की साहित्यिक भाषा थी। उस पर कोसल, मगध, काशी, पांचाल, करु, वत्स, सुरसेन, शाक्य, कोलिय, मल, वज्जी, विदेह, अंग आदि जनपदों और गणों की प्रादेशिक बोलियों का प्रभाव था। अतः हम कह सकते हैं कि पाली भाषा मध्य देश की भाषा थी और मध्य देश ही उसका उद्गम स्थान था। वैसे भी भाषा किसी खास नगर या देश की वस्तु नहीं होती, वह तो समुदाय, जन एवं देश से अपना संबंध रखती है। पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से इस प्राचीन भाषा के पुनरुत्थान के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी। यह पाली के समृद्ध साहित्यिक योगदान को संरक्षित करने और इसके अध्ययन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके तहत सरकार विभिन्न योजनाओं को लागू कर इस भाषा के शोध, अध्ययन और प्रचार को प्रोत्साहित करेगी। इसके माध्यम से पाली भाषा के महत्व को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पुनर्स्थापित किया जाएगा। संघं शरणं गच्छामि।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।